friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Maharashtra Judicial Services Civil Judge 2022. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. तो देखिए कुछ इस तरीके से आता है क्वेश्चन पेपर। सीरीज़ ए है ये, बुकलेट नंबर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर रोल नंबर लिखना होता है। ये मैंने एग्ज़ाम पेपर ऑनलाइन डाउनलोड किया है, आप भी इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। और 100 क्वेश्चंस हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन मराठी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं और मराठी कंपलसरी भी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ As given in the section 53 of Maharashtra Rent Control Act 1999, the offence under the following section is cognizable. तो वो कौन कौन से हैं लिखे हुए हैं? 17, 19, 21, 29, 30, 31। ठीक है, तो इसमें सेक्शन कौन सा ठीक होगा? 17, 1 is the answer. Next is 2. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. 3 is the answer. देखिए पहले सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं था, ओरिजिनली सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था प्रीएम्बल में। बाद में इसको 42nd अमेंडमेंट से इसको इंसर्ट किया गया, दो वर्ड्स को, सोशलिस्ट एंड सेकुलर को। और कौन सा वर्ड ऐड किया गया था? इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी पहले ही था, इंटीग्रिटी बाद में उसमें ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। तो अभी तक प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुई है, 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट 3. प्रोविजन फॉर डिफॉल्ट बेल इज मेड अंडर सेक्शन 167(2). 2 is the answer. Next 4. Fundamental duties are given in Article 51A. 2 is the answer. ये भी 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट की गई थी, ओरिजिनली 10 थी, 11th जो है 86 अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। नेक्स्ट 5. Who appoints Attorney General of India? President. 2 is the answer. कहाँ पर प्रोविजन है? आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। Next 6. Protection of life and personal liberty is a personal right, a fundamental right. It is a fundamental right. 2 is the answer. कहाँ पर है? आर्टिकल 21। Next 7. Pleading means stating material fact and not evidence. Yes, बिल्कुल ठीक है। Brief fact, dispute fact along with evidence, no. Material fact होने चाहिए और evidence नहीं देना है, not law. Order है ये 6, रूल 1 में लिखा हुआ है, of CPC। Next 8. In which transfer right to enjoy such property transfers? अब मैं कहूँगा कि क्वेश्चन में कोई ठीक नहीं लगा, बिकॉज सेल में जो है एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो गया तो राइट टू एंजॉय तो ट्रांसफ़र हो ही गया उसके साथ। मॉर्टगेज में जो है, जैसे यूसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज है तो उसमें राइट टू एंजॉय रहता है पूरा टाइम पीरियड। लीज में तो जो प्रॉपर्टी से पोजेशन देते हैं तो राइट टू एंजॉय रहता है, तो इसमें 1 भी आंसर हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 2 थोड़ा डाउटफुल है बिकॉज ओनली इन यूसुफ्रक्चरी इज देयर। नेक्स्ट इज 9. एज पर सेक्शन 96 ऑफ penal code IPC, nothing is an offence which is done in the exercise of right to private defense. 2 is the answer. कहाँ लिखा हुआ? सेक्शन 96 में ही। Next 10. Which of the propositions is correct? Every partner has right to take part in the conduct of the business. Yes, बिल्कुल ठीक है। Every partner is bound to tend diligently to his duties. Yes, बिल्कुल ठीक है। Every partner has right to assess, to inspect. Yes, बिल्कुल ठीक है। All of the boys का आंसर रहेगा, 4 is the answer। और ये सब कहाँ मेंशन किया गया? कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 12 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में। नेक्स्ट 11. एज पर सेक्शन 33 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, जुडिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ द एरिया ऑफ ब्रिहन मुंबई इज कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज मुंबई। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 12. विच कोर्ट हैव पावर टू इशू डायरेक्शन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है एंड 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इशू करने की डायरेक्शंस फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो कई क्वेश्चन हो गए, फिर देखिए 2 क्वेश्चन हो गए ये। नेक्स्ट 13. प्रोविजन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट इज गिवन इन
तो दिया हुआ है सेक्शन 149, 4 इज़ दी आंसर। 34 में क्या है, कॉमन इंटेंशन। 141 किसके लिए है, अनलॉफुल असेंबली के लिए है। नेक्स्ट 14, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन इज डिफाइंड इन, दैट इज सेक्शन 326, 4 इज द आंसर। 323 क्या है, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। 325 क्या है, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट। और 324 क्या है, कॉजिंग वॉलंटरी हर्ट बाय डेंजरस वेपन। अगर यहाँ पर ग्रीवियस नहीं लिखा होता, सिर्फ हर्ट लिखा होता, तो वो 324 होता। नेक्स्ट 15, डेफिनेशन ऑफ मॉर्टगेज इज गिवन इन सेक्शन 58 ऑफ TPA सेक्शन है ये, 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 16, प्रोविजन ऑफ penal code apply to any offense committed in India, any person in place not within India, या फिर person who is about 21 year, 18 year, any citizen of India in any place without and beyond India। 4 is the answer। सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन लगेगा 4 IPC। नेक्स्ट 17, where on a transfer of property and interest therein is created in favor of a person to take effect only on the happening of a specified uncertain event is called contingent interest। 2 is the answer। सेक्शन कौन सा है ये, सेक्शन है ये 21 TPA। नेक्स्ट 18, in which chapter of IPC general exceptions are given, in chapter 4। 2 is the answer। Next 19, where no provision is made by contract between the partners for duration of their partnership or for determination of their partnership, the partnership is at will। 4 is the answer। सेक्शन कौन सा है ये, 7 of Partnership Act। Next 20, power to amend constitution is with Parliament। 3 is the answer। आर्टिकल कौन सा है, 368 of Constitution of India। Next 21, as per article 121 an order to set aside an abatement is, देखिए ये आर्टिकल कौन सा पूछ रहे हैं, स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 121 है ये 60 days। 2 is the answer। Next 22, dying declaration is a statement by the person before the police या डॉक्टर as to cause of his death। देखिए अब ये भी मैं कहूँगा कि ठीक से नहीं है, बिकॉज मेरे को कोई भी क्वेश्चन इसके ना प्रॉपर से नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसे बनाए गए हैं कि बस डिफ़िकल्टी अराइज करने के लिए क्वेश्चन पेपर में, वो अच्छा सा लेवल दिखा नहीं है हर जगह। अब ये बिफोर पुलिस ऑफिसर भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है, लेकिन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ होगा, ठीक है। अगर एक तरीके से देखें इसमें ऑल ऑफ द अबव भी होना चाहिए था ऑप्शन, फिर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 23, डिक्री में बी प्रिपेयर विद इन 1 year एट अ टाइम, या फिर आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। और कितने दिन बनानी होती है, 15 days में। ऑर्डर 20 है और रूल 6A में लिखा हुआ है ये। हाउएवर इट कैन बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, 2 में लिखा हुआ है, सेक्शन 22 CPC। Next 24, provisions for determination of lease is given in section 111। 3 is the answer। Next 25, out of the following proposition which is correct, 1 in respect of non-payment of fine not exceeding 2 months when the amount of fine not exceeding 50 rupees, ये ठीक है, 2 months लिखा हुआ है नहीं। और अगर 50 से और 100 है तो कितना होगा, 4 months एंड मैक्सिमम 6 months। और वो भी किस केस में, जब फाइन ओनली ऑफेंस है तब। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, 1। सेक्शन कौन सा है ये, 67 ऑफ IPC। नेक्स्ट 26, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यस बोथ। 3 इज द आंसर। और इसमें एक और होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन में लिखा हुआ है एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट 27, फर्स्ट डिवीजन ऑफ स्केड्यूल ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर सूट्स। 2 इज द आंसर। और सेकंड डिवीजन किसके लिए है, अपील्स के लिए। 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 28, कंकरेंट लिस्ट इज गिवन इन स्केड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्केड्यूल 4 में क्या है, स्केड्यूल 4 है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। स्केड्यूल 5 में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। फिर 6 में क्या है, प्रोविजन एज टू ट्राइबल एरियाज, आसाम, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, एंड 7 बता ही दिया। नेक्स्ट 29, इन अ व्यू ऑफ अमेंडमेंट इन ईयर 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड, ग्रांट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज एन एक्सेप्शन। तो ग्रांट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज अ जनरल रूल इसको अमेंड किया गया है, अब जो है एक्सेप्शन में देंगे, एक्सेप्शनल केसेस में ही, पहले जनरल रूल था। 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 30, बाय विच कैलेंडर रेंट हैज़ बीन रिकवर्ड, ब्रिटिश कैलेंडर्स, 3 इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है ये, सेक्शन 32 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में। नेक्स्ट 31, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में अरेस्ट एनी पर्सन एज पर सेक्शन 44 ऑफ CRPC when any offence is committed in presence of a magistrate within his local jurisdiction, even beyond his local jurisdiction, both, only in his jurisdiction, 1 is the answer। अब मान लो jurisdiction में नहीं है, तब अगर मान लो उसने अरेस्ट करना हो, उसके सामने उसने cognizable and non bailable offence कर दिया, फिर it will be treated as a section 43 arrest, मतलब citizen arrest, arrest by private person। Next 32, provision of arrest and detention is given in। Next 33, as per section 29 CRPC, the court of a magistrate of first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years, 3 is the answer। and fine कितना कर सकता है, only up to 10,000 rupees। 29 में लिखा हुआ है ये CRPC में। Next 34, the court may attach property of absconding accused under section 83, 2 is the answer। 82 में क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। 84 में क्या है, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन एज टू अटैचमेंट एंड रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी अटैचमेंट इन 85। नेक्स्ट 35, स्टैंडर्ड रेंट इन रिलेशन टू एनी प्रीमाइसेस मींस रेंट फिक्स बाय द कोर्ट या फिर स्केड्यूल या फिर टेनेंट बाय द कोर्ट, 1 इज द आंसर। डेफिनेशन कौन सी है ये, सेक्शन 7 में डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें, और ये है 14 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। Next 36, when sub tenant has become tenant, कब बनता है वो, when the interest of tenant any premises is determined for any reason any sub tenant to whom premises has been lawfully sublet। 4 इसका आंसर रहेगा। सेशन कौन सा ये है, 25 महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 37, प्रोविजन फॉर सब्स्टिट्यूटिव परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन इन सेक्शन 23 इज द आंसर। और ये कब से आया ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, 2018 की अमेंडमेंट से। नेक्स्ट 38, अंडर द प्रोविजन ऑफ CRPC एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर, 2 इज द आंसर। का मेंशन किया गया है सेक्शन 62 में ऑफ CRPC। नेक्स्ट 39, द प्रोविजन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इज गिवन इन सेक्शन 5 बट इट इज़ ओनली ऑन अपील एंड अप्लीकेशंस, नॉट फॉर द सूट, सूट्स के लिए नहीं है। Next 40, order 5 rule 20 provides for substituted service, 3 is the answer। Next 41, document means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, marks and figures, all of the above, 4 is the answer। का मेंशन किया गया है सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस ऑफ एविडेंस एक्ट में। Next 42, every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditor's transfer is called as fraudulent transfer, 4 is the answer, and it is voidable। सेक्शन कौन सा है ये, 53 TPA। नेक्स्ट 43, एज पर आर्टिकल 65 पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन बेस्ड ऑन टाइटल इज 12 years, 1 is the answer। Next 44, magistrate of first class may issue warrant if he has reason to believe that any person is confined under such circumstance that confinement amounts to an offence, that is section 97। it is also called as mini habeas corpus। और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अलावा इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर SDM भी जो है वारंट इशू कर सकते हैं। Next 45, warrant case means a case tending to offence with death, imprisonment for life and exceeding 2 years, 1 is the answer। कहाँ मेंशन किया गया, सेक्शन 2X ऑफ CRPC में। समन केस कितने में है, 2W में। Next 46,
विच कोर्ट इज कॉल्ड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल्सो हाई कोर्ट, बट ऑप्शन में सिर्फ यही है, तो 3 इसका आंसर रहेगा। कहाँ पर मेंशन किया गया है ये? आर्टिकल 129 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट 47, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड substitute performance of contract. Yes, one is the answer. Who has become capable of performing the contract, who does not fail to prove that he has performed essential terms of the contract. तो इन दो केसेस में तो कर ही देंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1। अभी बताया था 2018 की अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस को। ऐसे 48, द कोर्ट मे रिफ्यूज टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट विद द प्लेंटिफ हैज नॉट रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। तब रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, तब तो हो ही जाएगा रिसेंड। व्हेन द थर्ड पार्टी हैव नॉट एक्वायर्ड राइट इन द गुड फेथ, तब भी रिसेंड कर देंगे। वेयर ओनली पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सोट टू बी रिसेंडेड एंड सच इज नॉट सिवरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तब कर देंगे, तब रिफ्यूज़ कर सकते हैं रिसेंड करने के लिए। 3 इसका आंसर रहेगा। कहाँ मेंशन किया गया है ये मेंशन किया गया है सेक्शन 27 के सब सेक्शन 2 में। नेक्स्ट 49, मैंडेटरी इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड under section 39 when it is not necessary to compel the performance, या when to prevent the breach of an obligation it is necessary to compel the performance of certain acts। 3 इसका आंसर रहेगा। 39 SRA में लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट 50, the landlord shall be entitled to inspect the premises let or given on license at a reasonable time after giving prior notice to the tenant। 2 is the answer। और ये काम मेंशन किया गया सेक्शन 28 महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में। नेक्स्ट 51, मीन प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड। तो मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 212 ऑफ CPC में। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव और माइट ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड, ठीक है, बट शैल नॉट इंक्लूड ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 1। जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वो नहीं उसमें होता, ठीक है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों ऑप्शन इसका ये मीन प्रॉफिट में आते हैं, ये मीन प्रॉफिट में नहीं आते। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये आंसर होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र के जो कितने भी क्वेश्चन है थोड़ी सेंस कम है इनमें, जस्ट ये डिफ़िकल्टी को रेज करने के लिए यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं ताकि समझ में ही ना आए। नेक्स्ट 52, द प्ली ऑफ एलिबाई इज एडमिसिबल एज पर सेक्शन 11 ऑफ एविडेंस एक्ट। 3 इज द आंसर। Next 53, the provision of Maharashtra Rent Control Act shall in first instance apply to premises let for the purpose of residence, education, business, trade, storage in the area specified in Schedule 1 and Schedule 2। 4 is the answer। कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 2 के 1 में ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 54, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर मनी पेबल फॉर मनी लेंट एज पर आर्टिकल 19 इज। आर्टिकल 19 किसका? शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। देखिए ये कौन बताएगा? जैसे मैंने कहा ना, प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं बनाए हुए हैं, बस डिफ़िकल्ट करने के लिए बना दिए क्वेश्चन। कितना है? 3 years एंड द मनी लेंट। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 55, बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स पर्सन हु अदर्स मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट्स एग्जिस्ट, या फिर पर्सन अगेंस्ट हुम एलिगेशंस आर लेवल मस्ट प्रूव दोज एलिगेशन आर फॉल्स। नो, हु हैज एविडेंस विद हिम। तो 1 इसका आंसर रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होता है? चैप्टर कौन सा है एविडेंस एक्ट में? चैप्टर है ये 7, पार्ट है ये 3, और 101 से कहाँ तक है? 111 तक। नेक्स्ट 56, where a person in town of Bombay delivers to a creditor document of title to immovable property with the intent to create a security thereon, the transaction is called as mortgage by deposit of title deeds। 4 is the answer। सेक्शन 58 डिफाइन करता है मॉर्टगेज को। 58A में लिखा हुआ व्हाट इज मॉर्टगेज, मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजी। सिंपल मॉर्टगेज है B में, कंडीशनल सेल है C में, इंग्लिश मॉर्टगेज है E में, एंड मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है 58F में। नेक्स्ट 57, प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स इज गिवन इन आर्टिकल 13 एंड लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इंटेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो क्या होंगे? वो इक्लिप्स हो जाएंगे। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 58, एवरी एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। 3 इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है ये?
सेक्शन है ये 26। देखिए मैंने इसका बनाया हुआ है, मैं हर पेपर में बताता भी हूँ जहाँ भी क्वेश्चन आता है ऐसा। CMTLUW। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड 25, एक्सटेंट ऑफ मैरिज 26, एक्सटेंट ऑफ ट्रेड 77, एक्सटेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग 28, अनसर्टेन 29, W वेजरिंग 30। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं CMT लव। नेक्स्ट 59, A इंस्टिगेट B टू मर्डर C, B रिफ्यूजेस टू डू सो। ए ने क्या किया, ए ने अबेटमेंट तो कर दी, A इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग B टू कमिट मर्डर, 3 इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है ये, 108 IPC, और इसमें ये इलस्ट्रेशन A है। नेक्स्ट 60, हु गिव्स ओथ टू द गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, 3 इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है, आर्टिकल 159 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट 61, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज करेक्ट, टू डिस्क्लोज टू द बायर एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी। अब देखिए ये भी मैं कहूँगा क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, प्रोपोजिशन है बट रिगार्डिंग व्हाट, किसके लिए है ये, ड्यूटी ऑफ द सेलर है, क्या है, बताया ही नहीं हुआ कुछ भी। तो टू डिस्क्लोज टू द बायर एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी एज टू प्रोड्यूस टू द बायर ऑन हिज रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी एज टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस रेंट एक्रूड ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अप टू द डेट ऑफ सेल। यस, क्या है ये, इसमें क्या आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, 4 इज द आंसर। सारे करेक्ट हैं ये रिगार्डिंग सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसका मेंशन किया गया सेक्शन 55 ऑफ TPA में। Next 62, rest just time means facts forming part of same transaction, 2 is the answer। section 6 है ये एविडेंस एक्ट का। Next 63, provision for execution of decree or order is given in order 21, 2 is the answer। order 20 में क्या है, what is judgment and decree। 22 क्या है, अबेटमेंट के लिए है, अबेटमेंट ऑफ सूट। 19 किसके लिए है, एफिडेविट्स। Next 64, defendant has to file his written statement within 30 days from the date of service of summons, 1 is the answer। का मेंशन किया गया ऑर्डर 8 रूल 1 में ऑफ CPC। Next 65, as per following section of tenancy agreement to be compulsory registered, का मेंशन किया गया सेक्शन 55 ऑफ महाराष्ट्र एंड कंट्रोल एक्ट में, 4 is the answer। Next 66, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person, wrongful loss to another, this is said to be said, this is said to that thing dishonestly, 1 is the answer। सेक्शन कौन सा है, 24। इसका देखिए मैंने बनाया हुआ है एक PMWDF, प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड फेमस। कैसे, 21 पब्लिक सर्वेंट, 22 मूवेबल प्रॉपर्टी, 23 wrongful gain wrongful loss, 24 dishonestly and fraudulently, 26 क्या है, रीज़न टू बिलीव, अगर याद करना हो तो RTB। तो PM वर्ल्ड फेमस, इसको आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। 25 कहाँ पर है, फ्रॉडलेंटली का है ये। नेक्स्ट 67, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय अ कोर्ट इन अ सूट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इन्वॉल्विंग अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू प्राइवेट प्रोजेक्ट वर्क्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, 4 इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है ये, सेक्शन 41HA of SRA। Next 68, under the provision of sale of goods act, it is duty of the seller to accept and pay for them। ये तो बायर की ड्यूटी है to deliver the goods, 2 is the answer। कहाँ लिखा हुआ है ये, सेक्शन 31 सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। Next 69, which of the following proposition is correct, all the fact may be proved by oral evidence including content of documents, no it is wrong। एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कहाँ मेंशन किया गया, सेक्शन 59 ऑफ एविडेंस एक्ट में। प्राइमरी एविडेंस मीनिंग डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, यस। सेक्शन कौन सा है ये, 62। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ये हो गया रॉन्ग। ये 58 में एविडेंस एक्ट। फिर कन्फेशन बिफोर पुलिस इज एडमिसिबल इन कोर्ट, नो इट इज़ रॉन्ग। 25 में ये मना किया गया है, तो इसमें ठीक कौन सा हुआ, 2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 70, which of the following proposition is correct, nothing is an offense which is done by a judge while acting judicially, yes बिल्कुल ठीक है ये। फिर nothing is an offense which is done by a person who is justified by law, ये भी ठीक है। done by a person by accident, ये भी ठीक है। तो all of the is correct। ये सेक्शन 78, ये है 79, ये है 80 ऑफ IPC।
Next 71, which of the following proposition is correct? Where a party to the contract has not obtained substitute performance of contract in accordance with the provision of section 20 SRA. अब देखो इस क्वेश्चन को कोई समझ पाएगा क्या? मतलब तो इन्होंने एक स्टेटमेंट लिख दी वेयर अ पार्टी, तो इसका मतलब क्या? व्हाट अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, आधी स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पर कि भाई अगर उसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं ली अगर, तो होगा क्या, मतलब आगे व्हाट। फिर है ए कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस विच इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस ड्यूटी विच कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज, तो व्हाट ए कॉन्ट्रैक्ट विच इन नेचर नॉट डिटर्मिनेबल। तो ये बताओ तो सही भाई, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन ही रॉन्ग है पूरा। ये पूछना तो ये चाह रहे हैं भाई वेयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी ग्रांटेड या फिर कैन नॉट बी ग्रांटेड, तो उस तरीके से तो पूछें। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट 72, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बिन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज इज कॉल्ड एज रेस जुडिकाटा। 2 इज द आंसर। सेक्शन 11 CPC में मेंशन किया गया है। Next 73, every person is competent to contract who is age of majority according to law, sound mind not disqualified. Yes, all of the above. 4 is the answer। section 11 of Contract Act में mention किया गया है ये। Next 74, provision for burden of proving fact especially within the knowledge is given in section 106। 4 is the answer। 3 में क्या है? पर्टिकुलर नॉलेज वाला है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बारी। 104 में टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, और 105 में क्या है? जनरल एक्सेप्शन में फॉल करते हो, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है। नेक्स्ट 75, कोर्ट में इशू ए कमीशन अंडर सेक्शन 75 टू एग्जामिन एनी पर्सन, यस, टू मेक अ पार्टीशन, यस, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, यस, ऑल ऑफ द अबव। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 76, द प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट प्रेमाइसेज एनी प्रेमाइसेज बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। 3 इज द आंसर। का मेंशन किया गया है ये सेक्शन 3 एग्जम्पशंस में ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 77, प्रोविजन फॉर हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज गिवन इन सेक्शन 15। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 78, as per the statement of objects and reasons of criminal law amendment 2018, it amended the law relating to rape। 1 is the answer। Next 79, principle of estoppel is rule of law है equity है? equity। 2 is the answer। Next 80, the schedule for period of limitation is divided in 3 division। 1 2 मैंने ऊपर बताई दिए। थर्ड कौन सा है? एप्लीकेशंस के लिए, तो सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन 1 2 3 3 डिवीजन है। नेक्स्ट 81, a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is called as executive magistrate, a district magistrate and not a judge। देखिए जज की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? ये दी हुई है सेक्शन 19 ऑफ IPC में, और इसके इलस्ट्रेशन 4 में लिखा हुआ कि वो नॉट अ जज, जो कमिट करता है वो उस केस के लिए जज नहीं है, तो 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 82, द ट्रांसफर सर्टेन एग्जिस्टिंग immovable property voluntary and without consideration is called as gift। 4 is the answer। section कौन सा है? 122 TPA। next 83, A lets a farm to B on condition that he shall walk 100 miles an hour, तो लीज इज void। 3 is the answer। का ये कंडीशनल ट्रांसफर सेक्शन 25 और इसमें इलस्ट्रेशन है A। Next is 84, which injunction may be granted to prevent the breach of obligation existing in the favor of person whether expressly or by implication? That is perpetual injunction। 4 is the answer। section कौन सा है ये? 38। टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में कहाँ पर मेंशन किया गया है? 36 एंड 37 में, मैंडेटरी बताई दिया 39 में। नेक्स्ट 85, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज करेक्ट? राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस कैन बी ट्रांसफर्ड, नो। मे राइट टू सू कैन बी ट्रांसफर्ड, नो। पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यस। तो 3 इज द आंसर। सेक्शन 6 TPA देख सकते हैं इसके लिए आप। नेक्स्ट 86, a decree may be executed not by the court which passed it, not by the court to which it is sent for execution, either by the court which passed it or by the court to which it is sent for execution। 3 is the answer। section कौन सा है? 38 of CPC।
Next 87 on the commencement of Maharashtra Rent Control Act the following laws shall stand repealed. तो ये सारे ही कर दिए थे, all of the above 4 is the answer. सेक्शन कौन सा है, कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 58 महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में. नेक्स्ट 88 प्रोविजन सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज अपील एंड एप्लीकेशन 4 इज द आंसर. 2 and 3 मैंने ऊपर ही बताया था, ऊपर जो क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट 89 ए ट्रेड्समैन लीव्स द गुड एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, बी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन, बी इज बाउंड टू पे फॉर देम. 2 इज द आंसर. ये सेक्शन 70 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट obligation of person enjoying benefit non gratuitous act. non gratuitous मतलब not free. Next 98 stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject thereof may be, वो होते हैं कंडीशन और वारंटी. तो कंडीशन इसमें ऑप्शन में नहीं है, वारंटी है, तो 1 इसमें आंसर लगा सकते हैं, पर मेरी क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है. नेक्स्ट 91 पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट इज, जिसे पब्लिक डॉक्यूमेंट 1 इज़ दी आंसर. का मेंशन किया गया है ये सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, उसमें सब सेक्शन 2 है. ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहाँ पर है? 75 में. नेक्स्ट 92 मैजिस्ट्रेट मे रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन. दैट इज 164 CRPC 3 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 93 when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence is said to make a proposal. 3 is the answer. Section कौन सा है? 2A of Contract Act. Next 94 no suit under section 6 of SRA shall be brought after the expiry of 6 months from date of disposition. 1 is the answer. Next 95 period limitation for 12 years for landlord to recover possession from a tenant starts when the tenancy is determined. 2 is the answer. का मेंशन किया गया है ये है आर्टिकल 67 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट. नेक्स्ट 96 CRPC एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर. अब तो ये हटा दिया गया है, तो होल ऑफ इंडिया है, बट यहाँ पर अभी भी जो है सम चैप्टर्स जैसे कि चैप्टर एक्सेप्ट 8, 10 and 11 इनके अलावा जो दूसरे चैप्टर अप्लाई नहीं होते. कहाँ पर? नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ में. तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है. वैसे देखें तो होल ऑफ इंडिया, बट कुछ चैप्टर्स अप्लाई नहीं है नागालैंड में. नेक्स्ट 97 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज इनकरेक्ट. विद द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे इंस्टीट्यूट अ सूट विद द सेम पीरियड आफ्टर डेथ as would otherwise have been allowed from time so specified. ये बिल्कुल ठीक है. Where once time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it. Yes, बिल्कुल ठीक है. In computing period of limitation for any suit, the day from which such period is to be reckoned shall not be excluded. It shall be excluded होगा, ये हो गया wrong. In computing the period of limitation for an application to set aside an award, time requisite for obtaining copy of award shall be excluded. Yes. एक सेक्शन कौन सा? ये सेक्शन है 12 और ये है 6 एंड दिस इज 9. तो गलत कौन सा हुआ इसमें? 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 98 कंसेंट इज टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड. क्वेश्चन कितने में? 15 में, अंडर इन्फ्लुएंस 16 में, फ्रॉड 17 में. ऑल ऑफ द अबव 4 इज द आंसर. और ये कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 14 में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट 99 एनी अपील मे बी डिटरमाइंड after the prescribed period if the applicant satisfy the court that he is ready to pay additional court fee stamp, he had sufficient cause for not preferring the appeal. Sufficient cause के लिए कर सकते हैं. 2 is the answer. और सेक्शन कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगेगी एज पर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट. Next 100 when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. 3 is the answer. का मेंशन किया गया है ये सेक्शन 2B ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Maharashtra Judicial Services 2022, and we will continue this series until we will discuss all the papers of Maharashtra Judicial Services and subject wise videos as well. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कुछ सजेशंस और एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. We always appreciate your comments and feedback. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips.
मिनिमम स्टार्ट्स विद 20, मिनिमम इज 20 रुपीज़। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.